Welcome back, my dear students of grade 8. We are doing the first chapter of civics, that is the need for laws and the constitution. And so far we have discussed in this chapter the need for laws, the constitution and its feature. And today we are going to discuss the preamble to the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेस वर्क। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रियम्बल? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एन इंसाइट इनटू द ऑब्जेक्टिव्स and the principles which were desired to be achieved through the making and implementation of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमने लॉज बनाए होते हैं, जब जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि हम उनको अचीव करें, तो प्रियम्बल उन्हीं के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देती है। इट मीन्स प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट टू द Constitution. That is why some constitution commentators have called it key to the Constitution, mirror of the Constitution, soil of the Constitution, or the political horoscope of the Constitution, because it gives us the main idea about the Constitution. That's why different constitutional commentators give it a different names. The preamble to the Indian Constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. और इन सब का क्या मीनिंग है? Let us discuss these words one by one. What is the meaning of these words in related to India? First, sovereign state. What is the meaning of the sovereign state? India is a sovereign state. It means that no internal or external limitations are imposed on it. इसका मीनिंग है ना तो कोई अंदर से, मीन्स इंडिया के अंदर, ना ही कोई बाहर से इंडिया का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मीन्स इंडिया पूरी तरह से फ्री है। इंडिया इज़ फ्री टू फॉर्मुलेट इट्स होम एंड फॉरेन पॉलिसीज एंड फ्री टू मेंटेन रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट। इंडिया एक फ्री कंट्री है, वो किसी भी तरह की कोई भी, चाहे वो इंडिया के लिए या दूसरी कंट्री के साथ किसी भी तरह की पॉलिसी बना सकता है और उनके साथ अपने रिलेशन मेंटेन कर सकता है। इसके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया इज़ फ्री टू टेक एनी डिसीजन। इट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरन स्टेट। Next is socialist state. What is the meaning of socialist state? It means that the state aims to establishing a welfare society in which a wide disparity between the rich and the poor does not exist. Man is free from exploitation by another man, and social, economic and political justice is provided to all without any discrimination. Socialist state means all are equal in the society. There is a no disparity or difference between the rich and poor, and no one can exploit the another man. कोई भी आदमी दूसरे का किसी भी तरह से exploitation means उसको परेशान नहीं कर सकता। And social, economy and political justice, हर एक लेवल पर, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल या पॉलिटिकल लेवल पर, सबको जस्टिस मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कलर का हो, लैंग्वेज बोलने वाला हो, रिच है, पुअर हो, तो सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं। और इकोनॉमिकली मीन्स कोई भी काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स दे हैव the same political rights. For example, right to vote. Next is secular state. What is the meaning of secular state? Secular means India is a secular state. It has no state religion. All religions are equally treated and no religion is given
प्रेफरेंस ओवर द अदर। इसका मीनिंग है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन समान है और सबके साथ एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। नो रिलीजन इज गिवन प्रेफरेंस, किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, मीन्स उसके कोई फेवर नहीं की जाएगी। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी religion. Next is democratic state. India is a democratic state in which the power lies in the hands of the people and the government is accountable to the people. The peoples are given democratic rights and liberties. Democratic state का meaning है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, मीन्स रूल बाय द पीपल, और जो सारी पावर है कोई भी डिसीज़न लेने की, अपनी गवर्नमेंट बनाने की, वो लोगों के पास है। और गवर्नमेंट जो बनती है, यानी जो लोग अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, चूज़ करते हैं, दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल। अकाउंटेबल मीन्स वो लोगों की नीड्स का, उनकी विशेस का ध्यान रखेगी। दैट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। और सभी लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स और लिबर्टीज, फ्रीडम मिलती है। डेमोक्रेटिक राइट्स मीन फंडामेंटल राइट्स है उनके पास, लिबर्टीज मीन्स दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। इन रिपब्लिक द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द वोट्स ऑफ द पीपल। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? जो भी स्टेट का हेड होता है वो इलेक्ट किया जाता है, हेरिडेटरी नहीं होता, मीन्स वोटिंग होती है, उस वोटिंग के अकॉर्डिंग ही जो स्टेट का हेड होगा उसे चूज़ किया जाएगा। हेरिडेटरी मीन्स क्या होता है कि अगर एक कोई जो हेड है उसके बाद उसका बेटा, उसका सन ही उसका बन जाता है आगे हेड, पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। जो भी हेड बनेगा कंट्री का उसको इलेक्ट किया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द वोट्स ऑफ द पीपल। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का उसको लोग इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या होता है कि जो लोग हैं पहले वोटिंग करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो सब मिलकर फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। That's why we can say it indirectly elected by the people. See in this picture, this is the preamble to the Indian Constitution, and we have discussed the main objectives of our Constitution, that is sovereign, socialist, secular, democratic and republic. In this video, these are the main objectives of our Constitution. So this is the preamble and the main objectives and the principle of the Constitution. I hope today's concept is clear to all of you. What is our India's main objective and principle? In the next video, we will study about the laws and the dissent. Thank you for watching this video.